Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about pragmatism. Alright, it is one of the philosophical foundation theory. So इस लेसन में हम लोग firstly introduction से start करेंगे कि what is pragmatism exactly. Alright, so what is the aim of pragmatism? Pragmatists क्या कहते हैं? Pragmatism and aims of education में क्या relation है and the contribution of pragmatism to education. ठीक है, education में pragmatism theory का क्या concept है और क्या contribute करती है, हमें क्या ways provide करती है in order to improve our education system. Pragmatism and curriculum relation. ठीक है, according to pragmatism what would be curriculum be like? Alright, pragmatism and MOT, that means pragmatism and methods of teaching, and in the last the role of a teacher. Pragmatists जो हैं वो एक टीचर का रोल किस तरीके से डिफाइन करते हैं according to them. Alright, so firstly the introduction. The term pragmatism derives its origin from Greek word pragma, meaning activity or practice or action. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये थ्योरी एक्सपीरियंस पे, लर्निंग बाय डूइंग में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है. ठीक है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, मास्टरी पे फोकस करती है. ठीक है, ना कि रोड मेमोराइजेशन, रोड लर्निंग, किसी पे भी नहीं. इट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस एंड एक्शन. ठीक है, प्रैक्टिकेबिलिटी, believes in practicability. Pragmatism tends to hold the idea that the truth or fact of yesterday needs to be experienced truly today and tomorrow. वो ये बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को पहले से जो थ्योरीज पढ़ाई जा रही हैं, वो जो आ चुकी हैं, वो थ्योरीज ना पढ़ाई जाएं, बल्कि उनको खुद ही जो है एक्सपीरियंस करने दें. ठीक है, ताकि वो सीख सकें. उनको जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड आइडियाज़ हैं वो उन पर बिल्कुल भी उनको पढ़ा के बाउंड ना करें, बल्कि उनको खुद एक्सपीरियंस करके, खुद एक्सपोजर के थ्रू उनको लर्न करने दें. वो फैक्ट्स और ट्रूथ को खुद जानेंगे. Pragmatic philosophy is a practical philosophy having no fixed or absolute standards. Man always creates new values and education should help them in doing so. The chief exponents of pragmatism are C.B. Pierce, John Dewey, William James, Will Durant and Schiller. इन लोगों ने सब ने मिलके ये वाला कॉन्सेप्ट हमें दिया था, लर्निंग बाय डूइंग का, एक्सपीरियंसेस का, एक्सपोजर का, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का, एक्शन का. ठीक है. Moreover, pragmatism and aims of education. Pragmatism believes that life is dynamic, which is subjected to constant change. Hence, the aims of education are bound to be dynamic. वो ये बिलीव करते हैं कि हमारी लाइफ जो है एक डायनामिक है. ठीक है, और वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कांस्टेंट चेंज आता रहता है. इस वजह से हमारी एजुकेशन को भी डायनामिक होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देम, एजुकेशन डील्स विद ह्यूमन लाइफ, so it must help the children to fulfill their biological and social needs. The aims of education as formulated by the pragmatists are the following. Alright, aims of education हम further on पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस पैराग्राफ पे अगर हम लोग फोकस करें तो उनका ज़्यादा फोकस इस तरीके था कि एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स की बायोलॉजिकल, ठीक है, और सोशल नीड्स को फुलफिल करें. वो सोसाइटी से इजीली इंटरेक्ट कर सकें, वो अर्निंग कर सकें. ठीक है, और वो कम्युनिकेशन में अच्छे हों. ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एजुकेशन से एक स्टूडेंट पे इम्प्लाई करने के लिए कही. ठीक है, कि एजुकेशन का सिर्फ मेन फोकस ये नहीं हो कि वो एकेडमिक्स में सारे में अच्छे हो, गुड ग्रेड्स ले और उसकी कोई सोशल डेवलपमेंट ना हो. ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हो. सो उन्होंने कहा कि एजुकेशन डील्स विद ह्यूमन लाइफ, सो इट मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स. To create new values, उन्होंने क्या बताई? The aims of education as formulated by the pragmatists are the following. ये है the two first one है to create new values. The pragmatists do not believe in the theory of any fixed aim of education. In their opinion, the aim of education is to create new values and the act of teachers to help himself develop new values. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्री डिटरमाइंड आइडियाज़, प्री डिटरमाइंड गोल्स को वो लोग बिल्कुल ओमिट कर देते हैं. वो कहते हैं एजुकेशन में इनका कोई काम नहीं है. स्टूडेंट्स को आज के मुताबिक एक्सपीरियंस करके खुद एक्सपोजर के थ्रू वो न्यू वैल्यूज़ और वो आइडियाज़ बिल्ड करने हैं. टू हेल्प द पीपल या फिर टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट विद हिम एंड द सोसाइटी. ठीक है, वो अपने आप से भी एडजस्ट हो जाए, अपने अंदर
भी एक एडजस्टमेंट लेके आए, ठीक है, उसके साथ सोसाइटी से भी इजीली इंटरेक्ट कर सके और एडजस्टमेंट हो जाए. द अदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू pragmatism is to help the pupil to make adjustments with himself and society. To enable students to gather experience through activity for the creation of new values, activity and experience are essential. कोई भी न्यू वैल्यू, कोई भी न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी और प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन शुड देयरफॉर provide physical, intellectual, moral and aesthetic activities as the media for the creation of new values. ठीक है, फिजिकल आप किस तरीके से दिख रहे हैं, आपका एक्सपोजर, एवरीथिंग, आपका इंटेलेक्ट, ठीक है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज, मॉरल, आपके एथिक्स, एस्थेटिक, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी. To help the pupil to reconstruct his experience, every individual has to solve different types of complex problems in his life. It is true. So, the other important aim of education, according to pragmatists, is to enable the pupil to form such an outlook about life as can help to tackle successfully the different problems of his life and future. ऑल राइट. अच्छा, इनका ये मानना है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए नहीं प्रिपेयर करना एजुकेशन के थ्रू कि वो एक अच्छा मॉक टेस्ट जो है क्लियर कर लें, बहुत अच्छे ग्रेड्स अचीव कर लें, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस में भी सक्सेस हासिल करें और उनको इजीली टैकल करें, ठीक है, उनको ओवरकम करें, उनको देखें और उससे इजीली बाहर आ जाएं, ठीक है. तो ये कहते हैं टू हेल्प द पीपल टू रिकंस्ट्रक्ट हिज एक्सपीरियंस, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए और जो रियल लाइफ सिचुएशन है उनको टैकल करें और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं इस तरीके से. Contribution of pragmatism to education, activity lies at the center of all educational processes. वो कहते हैं जितने भी educational processes हैं उसके अंदर activity ज़रूर होना चाहिए, उसके अंदर practical work ज़रूर होना चाहिए. The basis of all teaching is the activity of the child. Foster education is preparation for life. Pragmatism makes a man socially efficient. वो स्टूडेंट को बहुत सोशली गुड शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कि सोशली बहुत अच्छा है वो. They believe that the children should not be asked to work according to the predetermined goals. They should rather determine their goals according to needs and interests. वही बात, pragmatism is based on the psychology of individual differences. अच्छा, psychology of individual differences मतलब कि every student has different personality. हर स्टूडेंट की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वो लोग बहुत फोकस करते हैं. हर स्टूडेंट जो है गॉड गिफ्टेड नहीं होता. कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर होता है, कोई अच्छा होता है, कोई एवरेज होता है, कोई लो एवरेज होता है. तो pragmatists want education according to aptitudes and abilities of the individual. बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एजुकेशन को ईजी से ईजी बनाया इन्होंने. According to pragmatism, the theory and practice of education is based on two main principles. Education should have a social function and education should provide real life experience to the child. अच्छा, एक social function, एक socially अच्छा दिखे बंदा, ठीक है, उसके बाद उनको real life experience जो है वो भी मिले. All right. Pragmatism and curriculum. Pragmatism and curriculum क्या है? In the field of curriculum development, The following principles have been prescribed by the pragmatists. अच्छा, करिकुलम क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है जो कि आपको अगर आप लोगों ने मेरी लेसन वीडियो नहीं देखी है, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड curriculum and I don't remember exactly. Oh no, there is a video that only comprises of curriculum, the types of curriculum. Alright, so it contains a lot of definitions related to curriculum. Go and check it out. आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा curriculum क्या होता है, ठीक है. So curriculum क्या होता है, जो whatever you gain from school, ठीक है, whether it is written or non written, जो भी चीज़ें each and everything आप जो भी चीज़ें अपने स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से सीखते हैं वो करिकुलम में आती है, ठीक है. Principle of utility. According to this principle, only those subjects, activities and experiences should be included in the curriculum which are useful to the present needs of the child and also meet the future expectations of adult life as well. अच्छा, curriculum में वो चीज़ें included होनी चाहिए जो students की ongoing अभी present needs को fulfill करें और future expectations को भी fulfill करें. The subjects are such as language, ठीक है, physical well-being,
फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर एंड होम साइंस फॉर स्टूडेंट्स, फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ करिकुलम में ऐड होने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल करें और उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करें। Principle of interest. According to this principle, only those activities and experiences where the child takes interest are of four variety, namely interest in conversation, यानी कि language की implementation आ गई, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उनको फिर भी इंटरेक्ट करने नहीं आता, उनको बात करने नहीं आती। सो एक्टिविटी किस तरीके के हो कि इंटरेस्ट इन कन्वर्जेशन हो, ठीक है, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन हो ताकि वो क्रिटिकली एनालिसिस कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें, इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कीपिंग दीज वैराइटीज ऑफ इंटरेस्ट इन व्यू एट द प्राइमरी स्टेज। द करिकुलम शुड इंक्लूड राइटिंग, काउंटिंग, आर्ट, craft work in natural sciences and other practical work of simple nature. प्रैक्टिकल एक्शन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैग्मेटिस्ट की थ्योरी में। एक्सपीरियंस, द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक्स करिकुलम इज द चाइल्ड्स एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। इस पूरी पूरी की पूरी थ्योरी में मैंने आपको एक्शंस, एक्टिविटी, एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर का नाम दिया है और प्रैक्टिकेबिलिटी का भी बहुत नाम दिया है क्योंकि इनकी पूरी थ्योरी प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिकल वर्क पे लाई करती है। ऑल दीज थ्री शुड बी closely integrated. The curriculum, अच्छा principle of experience, integrity and utility क्या हो, should be integrated हो मतलब joined हो। The curriculum should consist of such varieties of learning experiences which promote original thinking and freedom to develop social and purposeful attitudes. Integration क्या होता है? The pragmatic curriculum deals with the integration of subjects and activities. Pragmatists want to construct flexible, dynamic and integrated curriculum which aids the developing child and the changing society more and more as she needs, demands and situation requirements. अच्छा, वो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं सब्जेक्ट्स को, एक्टिविटीज़ को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और इसको डायनामिक बनाएं और स्टडी और जो लर्निंग हो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, किसी किस्म का प्रेशर और स्ट्रेस एक चाइल्ड पे नहीं हो क्योंकि हमें चाइल्ड को सोशली बिल्ड करना है। Pragmatism and MOT, or you can say methods of teaching. Teaching learning process is a social and bipolar process. Learning takes place as an interaction between the teacher and the students. वो कहते हैं कि learning क्या है? एक interaction है teacher और student के बीच में, और हम भी यही कहते हैं। Pragmatism gives priority to the students. उन्होंने टीचर के मुकाबले में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ज़्यादा फोकस उन पर किया। सिमिलरली बिटवीन द थॉट एंड एक्शन इट गिव्स प्रायोरिटी टू एक्शन। जैसे कि थॉट, कोई आइडिया आपके दिमाग में, इमेजिनेशन से ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिकलिटी और उस थॉट के ऊपर उन्होंने एक्शन को प्रायोरिटाइज किया। दे प्रेफर प्रैक्टिकल ओवर थ्योरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग। उन्होंने थ्योरी बेस्ड टीचिंग और लर्निंग को बिल्कुल ऑमिट कर दिया, ठीक है, और उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क को हर चीज़ से ऊपर रखा है। The pragmatists have completely discarded the conventional method of teaching and laid emphasis on the invention of new methods. उन्होंने बहुत conventional traditional method of teaching जो कि old chalk and talk method भी कहते हैं, उसे बिल्कुल discard कर दिया, ठीक है, because it is of no use। और उन्होंने न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने का कहा क्लास में, और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का कहा ताकि हमारी लर्निंग जो है इम्प्रूव हो। The whole emphasis of method of teaching in pragmatism is on children, not the book of the teacher or the teacher or the subject। अच्छा, और the teacher और ना उनका जो मेन फोकस है सब्जेक्ट पे था, ना किसी की बुक पे था, उनका मेन फोकस ओनली चिल्ड्रन पे था और चिल्ड्रन के प्रैक्टिकल वर्क पे था। द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज टू डू एंड टू मेक, कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ करना। Should be flexible and dynamic. Pragmatists believe that minds of different children are different, hence we cannot have a fixed method of teaching which can be useful to all the situations. Pragmatists बहुत flexible है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो easy होके सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि माइंड्स जो हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेरी करते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी, एक क्लासरूम में बहुत डाइवर्सिटी होती है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज होता है, ठीक है, कोई गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होता है। सो टीचिंग मेथड सबके लिए बहुत अच्छे नहीं होते। कोई बोलने में, ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा होता है, ठीक है, और कोई सिर्फ अब अगर कुछ कहे हर चीज़ समझ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिक्स टीचिंग मेथड उन्होंने कोई भी नहीं डिफाइन किया। लर्निंग बाय डूइंग एंड द प्रोजेक्ट मेथड्स हैव एन इम्पॉर्टेंट place in the methods of teaching proposed by the pragmatists. All learning must come as a product of action. Learning by doing makes a person creative, confident and cooperative at the same time.
ठीक है। बच्चा क्रिएटिव होता है, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, और कोऑपरेटिव क्योंकि ग्रुप वर्क होता है तो उसको कोऑपरेशन आ जाती है। दे ऑल्सो पुट ऑन एम्फेसिस ऑन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड में क्या होता है कि बच्चे को एक स्टेटमेंट या फिर एक प्रॉब्लम दी जाती है और उस पर वो लोग इंक्वायरी करते हैं, सर्च करते हैं, एंड देन खुद डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। द टेक्निक्स विच फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। वो टेक्निक्स, वो स्ट्रैटेजीज जो लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा प्रमोट करती है, वो वाली एक्टिविटीज़ जो हैं अकॉर्डिंग टू प्रैग्मिस्ट आप प्रैग्मेटिस्ट क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Role of teacher कैसे define करें? The opinion of pragmatists, the duty of the teacher is to create such an environment in the school where pupils will have to face different problems relating to real life and will take interest in the solution of those problems. अच्छा, pragmatism regards a teacher as a helper, guide and philosopher। ठीक है, उन्होंने टीचर तो हटा ही दिया, उन्होंने कहा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, बच्चों की हेल्प करेगा, या फिर फिलोसोफर प्रोवाइड करेगा, फिलोसफी देगा। द चीफ function of a pragmatic teacher is to suggest problems to his pupil and to stimulate them to find by themselves a solution which will work. Stimulate, as a stimulator टीचर काम करेगा, बच्चों को पीछे से पुश करेगा और आगे बच्चे खुद चलेंगे। The teacher must provide opportunities for the natural development of innate qualities in the children। जो innate यानी कि जो पहले से ही inheritance में उनकी qualities मौजूद हैं, टीचर को चाहिए कि वो वाली qualities भी बच्चे शो करें, ठीक है, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिसके थ्रू वो ये चीज़ें भी शो करें। His main task is to suggest problems to his students, pupils and to guide them to find the solution. Alright, let's sum up. हम लोगों ने आज pragmatism पढ़ा, ठीक है। Pragmatism completely focuses on learning by doing hands-on activities, experiences, exposure, to make और to do, ठीक है। इसका स्लोगन अगर हम बनाएं तो to make and to do। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिसमें विलियम जेम्स भी शामिल थे, C.B. Peirce भी शामिल थे। उसके बाद हमने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े, इंट्रो पढ़ा है स्टार्ट में। ये सब कुछ हम लोगों ने आज पढ़ा। इफ़ यू find this lesson productive, then please do let me know in the comment section. Allah Hafiz.